बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात की थी कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है और ये कहाँ से राइज होता है। फिर उसकी नेचर के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की कि न्यूक्लियर फोर्स जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसका रेंज शॉर्ट है और ये स्पिन डिपेंडेंट है, और साथ साथ न्यूक्लियर फोर्स जो है नॉन सेंट्रल है, उसकी सिचुएशन प्रॉपर्टी है। तो आज उसका एक दूसरा प्रॉपर्टी है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है दैट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट, यानी न्यूक्लियर फोर्स का चार्ज ऑफ द पार्टिकल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। किस तरह? ये नहीं, ये फोर्स जो है न्यूट्रॉन के दरमियान भी पाया जाता है, ये फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान पाया जाता है, ये फोर्स जो है प्रोटॉन के दरमियान पाया जाता है। जबकि प्रोटॉन पे तो चार्जेस हैं, न्यूट्रॉन जो है वो तो न्यूट्रल है। तो ये नहीं, अगर ये चार्ज पे डिपेंड करता तो ये फोर्स न्यूट्रॉन के दरमियान ना होता, और ये फोर्स जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान ना होता। अब इसकी जो है प्रूफ हमें कहाँ से मिलती है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है। इसको हम लेते हैं मिरर न्यूक्लियाइड से, यानी एक इसका जो प्रूफ है वो आया है मिरर न्यूक्लियाइड। यानी मिरर न्यूक्लियाइड जो है वो क्या है, यानी ये from study of mirror nuclides we find that the three type of forces means the force which is between proton, force between proton neutron, and force between neutron are almost of equal magnitude. They are nearly equal, you can say. Yani from the mirror nuclide we find that the forces, nuclear force which is between neutron due to the exchange of pi meson, and between proton or proton, they are of nearly equal magnitude. Now what is mirror nuclei? Mirror nuclei are nothing but those nuclei which contain the same number of nucleons but in which the proton and neutron number are interchanged. Those nuclei which contain the same number of nucleons but the proton and neutron number are interchanged. For example, in one nuclei if the number of proton is 1 and neutron is 2, and the second nuclei if the number of proton is 2 and neutron is 1, then we call it a mirror nuclei. For example, nuclei 1 is 3. If you take the nuclei 1 is 3, here you have 1 proton and 2 neutrons, and in the nuclide He23 we have 2 protons and 1 neutrons. So we say that 1 is 3 and H2E3 they are both mirror nuclide. The number of nuclei are the same. You see here 4, 4, 4. The number of nuclei are the same, but they differ in number of protons, and but the proton and neutron they are going to interchange between them. For example, in the first case, in 1H3 contains 1 proton, 2 neutron, while in the second case you see 2 proton and 1 neutron. 2 neutron are exchanged with the 2 proton and 1 proton is exchanged with the 1 neutron. So these 2 nuclei are called mirror nuclei, and the mirror nuclei tells us, find the 3 forces that is between PP, between PN, between NN, that the magnitude of the forces, that is nuclear forces between PP, proton, neutron, and neutron, they are of equal magnitude. Okay. Now if you see the binding energy of 1H3, the binding energy of total binding energy of 1H3 is 8.5 MeV, and it means that the binding energy of 1H3, which is total binding energy which is equal to 8.5 MeV, ये कहाँ से आता है? ये आता है यानी 2 NP फोर्सेस से और 1 NN फोर्स न्यूट्रॉन के दरमियान, क्योंकि ये न्यूक्लियर फोर्स जो है दैट बाइंड द न्यूक्लियंस। तो अब अगर देखें इन डेट ऑफ He23
तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है टोटल वो 7.7 MeV है, वो आपको आता है 2 Np से और 1 Pp से 4 से। अब देखें 2 इधर हो गए, 1 ये हो गया, 3 हो गए, 2 इधर हो गए, 1 इधर हुआ, 3 हो गए। द 3 टाइप ऑफ फोर्सेस बीइंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंस by amount 8.5 minus 7.5 which is round about 0.8 MeV। तो ये 0.8 MeV ये कहाँ से आ गया, फ़र्क कहाँ से आया? तो प्रोटॉन के दरमियान बेसिकली रिपल्सिव फोर्स मौजूद होता है और उस रिपल्सिव फोर्स की बुनियाद पे थोड़ा बहुत तो इसकी जो वो है न्यूक्लियर फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, कम हुआ। यानी मुराद ये है कि हमने बात की कि न्यूक्लियर फोर्स जो है ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, किसी पार्टिकल के न्यूक्लियन के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। यानी ये न्यूट्रॉन के दरमियान में मौजूद है, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान भी मौजूद है और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी पाया जाता है। तीनों का मैग्नीट्यूड तकरीबन बराबर है और इसकी जो वजाहत है, इसकी जो प्रूफ है वो हमें मिलता है मिरर न्यूक्लियाइड से। मिरर न्यूक्लियाइड क्या है, जिसमें प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर यानी एक 1H3 ले लें और दूसरा He2 ले लें, तो दोनों केस में आप देखते हैं कि एक में प्रोटॉन जो है वो 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, दूसरे में 2 प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है। तो गोया इस केस में ये नंबर जो है ये इंटरचेंज हुए हैं, नंबर क्या हुए, इंटरचेंज हुए। और इस मिरर न्यूक्लियाइड की बुनियाद पे ये हमें वजाह देता है कि ये न्यूक्लियर फोर्स जो है ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। यानी अगर आप देखें 1H3 की बाइंडिंग एनर्जी देखें, टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो कि आपको 2 Np और 1 Nn से आता है वो है 8.5 MeV। और अगर आप He2 के देखें जो आपको आता है 2 Np फोर्सेस से और 1 Pp फोर्सेस से वो 7.7 है। यानी ये इससे ये थोड़ा कम है और कितना फ़र्क आ रहा है, 0.8 MeV फ़र्क आ रहा है। तो ये फ़र्क जो है ये क्यों आ रहा है in binding energy of 1H3 in He2 nuclide is due to the fact that Nn force in 1H3 is greater than Pp force in He2 due to electrostatic force of repulsion between 2 protons। ये इसका मेन वजह है कि प्रोटॉन पे तो चार्ज है, उसमें रिपल्सिव फोर्स भी है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, उस पर तो कोई रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। तो उसी बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि ये एक की वैल्यू जो है 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन तकरीबन मेरे न्यूक्लियाई में तो बराबर है, लेकिन एक में 8.5 आ रहा है, दूसरे में 7.7 आ रहा है। तो 7.7 इसमें जो 0.8 MeV की कमी आ रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन इसके दरमियान जो है रिपल्सिव फोर्स होता है और इसकी बुनियाद पे ये मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स क्या है, थोड़ा कम है। तो इससे हमें वाज़ेह हुआ कि न्यूक्लियर फोर्स जो है ये चार्ज पे डिपेंड करता है। क्यों? इसलिए कि बाइंडिंग एनर्जी का ताल्लुक नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन के साथ है। बाइंडिंग एनर्जी का ताल्लुक इसके साथ नहीं है कि इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। बाइंडिंग एनर्जी का ताल्लुक चूँकि नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन के साथ है, तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज और इंडिपेंडेंट है। इट इज़ फाउंड दैट बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड्स ओनली on the total number of nucleon and not on their nature। इस पर डिपेंड नहीं करता कि पॉजिटिव है या आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है। इन अदर वर्ड्स न्यूक्लियर फोर्स इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो है दैट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट एंड इट हैज़ नो कंसर्न विद द चार्ज। दिस कंक्लूजन इज़ आल्सो कंफर्म्ड। यानी कंक्लूजन क्या है कि ये न्यूक्लियर फोर्स जो चार्ज इंडिपेंडेंट है, इसको दूसरे एक्सपेरिमेंट से भी कंफर्म किया गया है, लाइक स्कैटरिंग ऑफ प्रोटॉन बाय हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एंड न्यूट्रॉन बाय न्यूट्रॉन। यानी इस एक्सपेरिमेंट से वाज़ेह हुआ, ये कंफर्म हुआ कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वो स्पिन पे डिपेंड करता है। थैंक यू।